let's say I'm talking about r equal to 1. So what do you mean by r equal to 1? R equal to means a circle. R equal to 1 means it is a circle like this, right? And you can say that at any point angle is given by omega. R equal to 2 means another circle, a bigger circle of radius 2. Polar plane में यही होता है ना. Polar plane means magnitude from origin. So this is given by 1 and angle is given by omega. So r equal to 1 means what? What do you mean by sigma equal to 0 in Laplace transform? If you remember in S plane, let us discuss Sir, y Laplace. axis. Right, imaginary axis. In S plane, this was the sigma and this was the j omega. So sigma equal to 0 means what? This plane. This plane is sigma equal to 0 plane. And in this plane, Fourier transform exists. In this line, imaginary axis line, Fourier transform is defined. So Fourier transform is defined only when sigma is 0. Similarly, looking at the Z transform, when r equal to 1, this is called unity circle. This is called unity circle because when r equal to 1, in polar plane it is a circle of magnitude 1, of radius 1, right? Am I clear? So you can say that when r equal to 1, then DTFT or continuous discrete time Fourier transform is defined. So DTFT is defined only in at unity circle. Where continuous time Fourier transform is defined only at the imaginary axis, just like in Laplace transform. Right? And what is the region of convergence? If you remember, convergence of Z transform similar to S domain. Inside the unit circle. No, it should not be inside the unit circle. outside. No. It depends upon x of n r to the power minus n. देखो definition देखो, दोबारा देखो. Basically x of z है क्या? x of z में आपने xn के साथ r to the power n minus n मल्टीप्लाई कर दिया. पहले DTFT में क्या होता था कि जब x of n बाउंडेड होता था, कहाँ गया ये? Yeah. So this was the definition of, this was the definition of DTFT. दोबारा देखिए. DTFT मैंने बताया था, DTFT is applicable or valid only when this condition satisfies. जब आपका mod of x of n, क्योंकि ये तो mod तो 1 ही होगा, है ना? तो जब mod of x of n bounded होगा, है ना? That is x of n is converging in nature, then only its DTFT will exist. तो हमने क्या किया, ये सिग्नल जब mod of x of n, मान लीजिए mod of x of n इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंफिनिटी आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स DTFT will not exist. DTFT will not, it will exist only when this is converging in nature. तो इसके लिए हम लोग फूरियर एनालिसिस नहीं कर सकते. इस सेट ऑफ सिग्नल के लिए, इस x of n के लिए we cannot determine its frequency domain analysis. That's why this is the role of Z transform, which is valid for wider domain or wider range of discrete time signals. In this case, what we can do? We can multiply x of n with r to the power minus n. Right? Because यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे z to the power minus n से multiply कर दिया ना? आप पहले x of n सिर्फ रखते थे, अब आप x of n को multiply कर रहे हैं z to the power minus n से. Right? सर एक बार ये समझा देना जरा, रिलेशन बिटवीन Z ट्रांसफॉर्म एंड DTFT. दोबारा समझाना है? यस सर. ओके. देखिए यहाँ पे Z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है? xz is equal to n varies from minus infinite to infinite xn z to the power minus. ये डेफिनेशन आपको क्लियर है? ये Z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है. Where z is r e to the power j omega. Z plane का मतलब है r is the radius of magnitude of the Z plane and omega is the angle in the Z plane. पोलर फॉर्म में ये. तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू xn, z को लिख दो r e to the power j omega.
राइट? सो आई कैन से दैट x of, इसको आप ऐसे लिख लो, x of r e to the power j omega is given by n varies from minus infinite to infinite xn r to the power minus n e to the power minus j omega. ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके. यस सर. अब मैंने आपको बताया था DTFT का डेफिनेशन अगर देखोगे तो DTFT का डेफिनेशन क्या था? DTFT था कोई भी सिग्नल x of n का अगर आप DTFT निकाल रहे हैं, इस सिग्नल के लिए आप DTFT निकाल रहे हैं तो सिंपली n को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कर दो और e टू द पावर माइनस j ओमेगा. दिस इज कॉल्ड DTFT ऑफ x of n. सिमिलरली अगर मैं बोलूं DTFT ऑफ x of n r टू द पावर माइनस n करिए तो क्या करेंगे आप? ये लिखेंगे दिस इज इक्वल टू x of n r टू द पावर माइनस n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n. ये लिखेंगे. ये पूरा सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट सिग्नल है. पहले xn था, अब xn की जगह आपने लिख दिया xn r टू द पावर माइनस n, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट x of z बिकॉज r e टू द पावर माइनस j ओमेगा. ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर. इट मींस दैट z ट्रांसफॉर्म कुछ और नहीं है. z ट्रांसफॉर्म बेसिकली DTFT ही है, लेकिन DTFT किसका है? x of n r टू द पावर माइनस n. समझ में आ रहा है? x of z कुछ नया नहीं है. जैसे आपको मैंने लाप्लास में भी बताया था, लाप्लास में भी लाप्लास इज नथिंग, नॉट अ न्यू ट्रांसफॉर्म मेथड. इट इज लाइक अ कंटीन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, बट इट इज याद है x of s was equal to Fourier transform of simply you can say that it is given by Fourier transform of, याद है किसी को? xt e to the power minus sigma t. आप पहले अगर मैं बोलूं xt का लाप्लास निकालो, xt का लाप्लास इक्वल टू क्या होगा? लाप्लास ऑफ xt इज Fourier ऑफ xt e power minus sigma t. तो अगर आपको xt पर माइनस सिग्मा टी का फूरियर निकालोगे, कैसे होगा इसका फूरियर बताओ? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट xt पर माइनस सिग्मा टी e to the power minus sigma e t पर e to माइनस the power minus j omega t. dt. अब आप इसको जब कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा s xt e पर माइनस सिग्मा प्लस j ओमेगा into t dt. Now this can be written as minus infinite to infinite xt e power minus st. ये क्या था? This is x of s. ठीक है? तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो आपने DTFT पढ़ रहे हैं तो z ट्रांसफॉर्म जो पढ़ रहे हैं, तो z ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट DTFT ऑफ xn r टू द पावर माइनस n. x of n जब कन्वर्ज नहीं हो रहा था, मैं दोबारा ये बताता हूँ, ध्यान से देखो. कुछ मान लो कोई x of n कुछ इस तरीके का है, 2 टू द पावर n मान लेते ही है, 2 x of n. मैंने बोला इसका क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, DTFT निकाल सकते हैं? कौन बताएगा? कैन वी डिटरमाइन DTFT ऑफ दिस सिग्नल? नॉन कन्वर्जिंग. बिकॉज जब आप कंडीशन देखोगे तो कंडीशन में दिखेगा मॉड ऑफ समेशन ऑफ x of n वेरिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मॉड अंदर ले लो. दिस शुड बी लेस देन इंफिनिटी. और आपको दिखेगा जब n को आप वेरी कराओगे तो 2 टू द पावर n कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है? ये डिस्क्रीट सिग्नल इंक्रीजिंग है. n की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कन्वर्ज नहीं हो और दिस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. So you say that it's DTFT. बताइए, DTFT of this signal will not exist. Does not exist. It does not exist. Then what you'll do? Z transform. वहाँ काम आता है Z transform. वहाँ काम आता है Z transform. So Z transform is basically valid for wider range of discrete signals. Z transforms are or exist for wider range of or broader range of discrete time signals. हम discrete time की बात कर रहे हैं because Z transform is valid only for DT signals, discrete time signals. अब ये क्या करता है? ये साथ में अगर आप डेफिनेशन देखोगे Z transform का, तो क्या किया था Z transform ने?
इसने x of n z to the power minus n ऐसे लिखा था हमने डेफिनेशन। तो इसने बेसिकली यहाँ पे आपने लिखा था x of n r to the power minus n then e to the power minus j omega n। तो मैंने आपको बोला ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है, बट ये क्या है, xn r power minus n का फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ द रेंज ऑफ r for which x of n r to the power minus n converges, पहले सिर्फ x of n चेक करते थे, अब r भी साथ में, r to the power minus n साथ में लगा दिया हमने। Now the range of r for which x n r to the power minus n converges is called ROC, region of convergence। समझ में आ रहा है? Yes sir. r की जिस वैल्यू पे ये कन्वर्ज करेगा, आप बोलोगे लेट्स से मॉड r लेस देन 2 और आपने इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, दिस इज द x of z, योर जॉब इज डन, राइट? सो योर z ट्रांसफॉर्म इज existence is applicable for wider range of dt signals for which DTFT is not applicable। ठीक है। सिमिलरली फूरियर ट्रांसफॉर्म जब आप निकालते हैं तो किसी सिग्नल में आके जो कन्वर्ज नहीं करता उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका लैप्लास पे निकालते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल इज नथिंग बट continuous time Fourier transform of that signal multiplied by e power minus sigma t। ये बताया मैंने ये। And the range of sigma for which xt e power minus sigma t converges is called ROC in the Laplace transform। ठीक है? ROC Laplace में कैसे डिफाइन किया था? ROC in Laplace was defined as range of sigma, वहाँ sigma के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, for which xt e power minus sigma t converges। तो हम वहां पे कहते हैं इसको हम ROC, ठीक है? बट ROC in Z transform, ROC in Z transform is range of R और mod of Z for which एक न्यूमेरिकल करके देख लेंगे, for which x of n r to the power minus n converges। सर ग्राफिकली फिर इसका मतलब तो वही हुआ ना कि जो सर्कल हमने बनाया था उसके अंदर ही z ट्रांसफॉर्म है। नहीं, जरूरी नहीं हो, r greater than 1 भी तो हो सकता है ना। अच्छा ओके। r equal to 1, देखो r equal to 1 का मतलब हुआ DTFT, है ना? r equal to 1 का मतलब क्या हो गया? DTFT। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। r equal to 1 का मतलब देखो सिंपल हो गया, DTFT कर रहे हैं आप, है ना? सिग्मा इक्वल टू 1 का मतलब, सिग्मा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? आप लाप्लास कर रहे हैं, है ना? r इक्वल टू 1 का मतलब हो गया यू आर डूइंग द DTFT। अच्छा, एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये रिलेशन तो आप बाद में पढ़ लेना। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, लेट्स से न्यूमेरिकल इज x ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर n un। ये बेसिक सिग्नल है, हमने इसका DTFT भी निकाला था। ठीक है, सॉल्व करिए जरा। Determine the Z transform of a to the power n un। करिए सॉल्व। a to the power n un के लिए Z ट्रांसफॉर्म बताना है। So what by a minus a? I think z upon 1 z minus a आना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ क्या किया हमने। इसको डेफिनेशन से ही देखते हैं। डेफिनेशन क्या है z ट्रांसफॉर्म का? सिंपल, x ऑफ n z टू द पावर माइनस n, यही है, where n varies from minus infinite to infinite। अच्छा, आपको दिख रहा है x ऑफ n जो है कॉजल है, that it is valid only for n greater than 0। तो समीशन में क्या हो जाएगा? 0 to infinite, and this will become a to the power n z to the power minus n। ये क्लियर है आपको? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 to infinite a z इनवर्स to the power n। सही लिखा मैंने? यस सर। yes sir। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। यस तो आपको पता है ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में क्या आता है? a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r।
तो ये चीज आपको पता है, तो ये हो जाएगा ए आपका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये हो जाएगा आई थिंक z अपॉन z माइनस a। ये हो जाएगा आपका लाप्लास z ट्रांसफॉर्म। बट प्लीज नोट दैट z ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड, it is not the unique z transform because many other signals can have the same z transform just like the Laplace transform. So always note that z transform and Laplace transform is defined with its transform as well as its ROC. साथ में हमें ROC भी मेंशन करना होता है। तो कैन वी कमेंट ऑन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? z की किस रेंज पे, मॉड ऑफ z की किस रेंज पे ये वैलिड है? तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर आपको ये पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? सर a by z less than 1 होगा। सर z greater than 1। नहीं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा A ये कन्वर्ज होना चाहिए तभी तो, नहीं तो वो तो z ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मॉड ऑफ a z इन ROC देखो, मॉड ऑफ a z इनवर्स शुड बी लेस देन 1। Yes sir। दिस इज कॉल्ड ROC। ठीक है, डेफिनेशन से उठा लेंगे, मॉड ऑफ a z इनवर्स इज लेस देन 1, दैट इज यू कैन से मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। This is called region of convergence. That is R is greater than mod of A. तो अगर आप R greater than mod A पे उसके काम कर रहे हैं तभी वो Z transform valid है, otherwise Z transform is not converging। सर लेस देन 1 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये तभी कन्वर्ज करेगा ना। अगर ये पूरा टर्म आपका 2 हो गया मान लो, तो 2 to the power n तो अगेन नॉन कन्वर्जिंग हो जाएगा। नहीं समझ आया? आ गया सर। सर देखो, हाँ बताइए। सर एक स्टूडेंट को एंट्री चाहिए, वेट कर रहा है वो। इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं सब? बार बार मैं एंट्री देता रहूंगा फिर कैसे होगा? चलो एनीवेज, ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो z की रेंज, जैसे मान लो मैं अगर कहता इसकी a पावर n un के लिए DTFT निकालिए, a पावर n un का अगर मैंने बोला आपको इसकी DTFT कैलकुलेट करिए, कैसे करते थे? आप बोलते थे x e to the power j omega is equal to n varies from minus infinite to infinite xn e power minus j omega n, यही बोलते थे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको लिख दिया n varies from 0 to infinite, ये 0 to infinite हो जाएगा, DTFT निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा x of n, that is x of n is a to the power n, right? It is a to the power n। अरे ये लिमिट इसकी 0 कैसे सेट होगी? हाँ, un है ना यहाँ पे। हाँ ये 0 कैसे सेट? बाई कौन है? भाई ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा ना। देखिए यहाँ पे आप लोग प्लीज आपस में टॉक मत करिए। ये n, ये un लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिट स्टेप फंक्शन है ये, तो इसीलिए ये समेशन में मैंने 0 to infinite कर दिया, समेशन में 0 to infinite कर दिया। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये DTFT कन्वर्ज कब करेगा तो क्या बोलोगे आप? क्या DTFT a की किसी वैल्यू पे भी निकल जाएगा? नो सर, a लेस देन 1। सर a लेस देन 1 होना देखो चाहिए। यहाँ पे आप बोलोगे मॉड ऑफ x, हमेशा DTFT जो होना चाहिए वो ऑब्वियसली लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए तभी तो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ जब हम लोग मॉड लगाएंगे तो मॉड ऑफ e पावर j थीटा तो 1 होता है, टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये मॉड ऑफ a टू द पावर n ये लेस देन 1 होना चाहिए, बिल्कुल तभी होगा। और ये तब होगा जब मॉड ऑफ a लेस देन 1 होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। अगर a की वैल्यू मान लो मैंने 2 बोल दिया, मैंने बोला 2 टू द पावर n un किया, आप क्या इसकी DTFT निकाल सकते हैं? तो आपने आंसर दिया था नहीं, क्योंकि आपने देखा 2 टू द पावर n करके जब करोगे तो इसके इनफाइनाइट आ जाएगा इसकी DTFT। बट z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n निकाला जा सकता है।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखो कैन यू डिटरमाइन दी, ये लिखो जरा z, डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 to the power n un, निकाल के बताइए। DTFT तो नहीं निकलेगा, z ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा? तो अभी हमने करके देखा था z z ट्रांसफॉर्म less than Z upon में Z minus 2. वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप a पावर n के साथ साथ r to the power minus n भी लगाते हैं, राइट? z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में, बिकॉज ये r e to the power j ओमेगा है z, है ना? तो अब आप साथ में क्या देखते हैं कि 2 into, यहाँ पे देखा था हमने जो a के टर्म्स में, राइट? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 2 into इसको इस पूरे को या तो z लिख दो, ये 2a है ना, 2z इनवर्स। यहाँ पे तो किया था a को 2 पुट कर दो, ये किया था हमने अभी, a को यहाँ 2 पुट कर दो, ठीक है? तो ये 2 पुट करोगे तो a 2 हो जाएगा, तो इसका आरो ये निकल के आएगा, है ना? बिकॉज ये z इनवर्स भी साथ में है, देखो सिर्फ 2 नहीं है साथ में। Yes sir. वहां क्या होता था, 2 to the power n हमेशा ये इनफाइनाइट हो जाता था। अब ये z के वजह से अब z डिसाइड करेगा साथ में ना, z की एक रेंज डिसाइड करेगी कि ये कन्वर्ज करेगा या नहीं। Am I clear? Yes sir. समझ आया? दोबारा बताऊं? yes sir आगे यहाँ पे आप, हाँ तो यहाँ पे आप देखो कंडीशन क्या होगा कि मॉड ऑफ a z इनवर्स, सिर्फ a नहीं, greater than 2. a z इनवर्स शुड बी लेस देन 1। ये पूरा जो है ना, ये अगर लेस देन 1 होगा तभी आपका ये कन्वर्ज करेगा। तो हमने ROC लिख दिया, है ना? a शुड बी लेस देन 1 और मॉड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन a और r शुड बी ग्रेटर देन a। So let's say we are talking about 2 to the power n un. So what is the z transform? It is simply z upon z minus a and its ROC will be, बताइए ROC क्या है? Greater than 2. mod z greater than 2 Mod Z greater than. और r greater than 2। तो अगर मैं इसको प्लेन में बनाऊंगा यहाँ पे z प्लेन में, तो कुछ ऐसे बनाऊंगा। एक तो यूनिटी सर्कल बनाते हैं रेफरेंस के लिए, जैसे इमेजिनरी एक्सिस बनाते थे लाप्लास में, तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी सर्कल। यूनिटी सर्कल बनाते हैं हम लोग जनरली, दिस इज कॉल्ड z प्लेन। यूनिटी सर्कल मींस mod z इक्वल टू 1 एंड वेयर इज ROC? तो r इक्वल टू 2 क्या होगा? r इक्वल टू 2, अच्छा इसमें 2 रेडियस का सर्कल, 2 रेडियस वाले सर्कल से बड़ा होगा। वेयर इज द पोल? दिस इज रैशनल फ्रैक्शन। 2 आपको बताया था मैंने, पोल 0 कहाँ पे है? 0 इज एट z इक्वल टू 0 एंड पोल इज एट, z equal to 2. 2 तो पोल कुछ यहाँ पे है, yes sir z इक्वल टू 2 मींस मैग्नीट्यूड इज 2, तो बेसिकली ये पूरा ये हो जाएगा 2 रेडियस का सर्कल सर्कल. बनेगा। ये आपका z इक्वल टू 2 है एंड वेयर इज ROC? mod z ग्रेटर देन 2। सो दिस इज द ROC। outside the circle. ये शेड कर देता हूं मैं, दिस इज द ROC। So whenever mod z, समझ आ रहा है? Outside the mod z equal to 2 circle, this is called ROC. सर यूनिटी सर्कल बनाने की क्या जरूरत पड़ी फिर? Just for हमेशा ड्रॉ करते हैं यूनिटी, जैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये जी ओमेगा एक्सिस बनाते थे ना, यस सर। तो यहाँ पे भी ये, क्योंकि यहाँ पे DTFT होता है। अगर ये ROC, if ROC covers the z equal to 1 circle, then its Fourier transform also exists. अब मैं इसी में पूछ लूं क्या 2 power n un का DTFT एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोलोगे ROC जो है वो यूनिटी सर्कल को कवर नहीं कर रहा, इसलिए इसका पूरे ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ROC यूनिटी सर्कल को कवर कर रहा होता, उस रेंज में आ रहा होता, जैसे मैंने पूछा इसी क्वेश्चन में लिख लो, व्हाट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो जरा z ट्रांसफॉर्म ऑफ सर 1/2 टू द पावर n un, ये सॉल्व करके बताओ। हाँ बताइए क्या डाउट है? सर कुछ बच्चे मतलब दोबारा वेट कर रहे हैं उसमें लॉगिन। चलो सर ROC 1/2 से 1 तक होगा मतलब। नहीं, इसका z ट्रांसफॉर्म पहले बताओ मुझे। z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? z अपॉन z Z माइनस, upon Z minus 1/2 half. है ना? ROC क्या बताया मैंने? सर ROC होगा 1/2 से बड़ा। mod z ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अब देखो इसकी पोल कहाँ पे, जीरोस कहाँ, बताओ जीरोस कहाँ पे? So 0 0 ओरिजिन पे है। ऑरिजिन। ROC 1/2. पोल्स कहाँ पे? 1/2 1/2। हाँ,
तो आप z इक्वल टू ये z प्लेन ड्रॉ करो, इसको हम पोल जीरो डायग्राम भी बोलते हैं, मैंने लाप्लास में भी सिखाया हुआ है। तो दिस इज z प्लेन, ठीक है। पोल आपका जीरो यहाँ पे है और पोल कहाँ पे है, पोल इज एट z इक्वल टू हाफ। तो z इक्वल टू हाफ, ऑब्वियसली इट इज अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड, कहीं पे भी हो सकता है पोल, एग्री कर रहे हैं आप? Yes, sir. This is location of pole. This is z equal to half, right? And where is the unity circle? Unity circle तो हमेशा ड्रॉ कर दिया करो। Unity circle कहाँ बनेगा? z equal to 1. ये यूनिटी सर्कल। अब आरओसी बताइए कहाँ है? सर 1/2 से बड़ा, मतलब आउटसाइड z equal to Outside the 1/2. mod z equal to half circle. तो ये आरओसी है। आप बोलोगे this is the ROC, right? This is the ROC. Now tell me if ROC covers the unit circle or not. करता है Covered. कर रहा है, कर रहा है, यूनिट सर्कल कवर कर रहा है। Then you say its DTFT will also exist. That's why 1 to the power n un का its DTFT will also exist. समझ आ रहा है? यस क्योंकि आरओसी से पता चल रहा है कि यूनिटी सर्कल पे भी डिफाइंड है। तो यूनिटी सर्कल पे कौन सा डिफाइंड होता है? DTFT। वेयर z प्लेन कहाँ डिफाइंड होता है? पूरे z प्लेन में। DTFT कहाँ डिफाइंड होता है? ओनली z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 पे सिर्फ DTFT डिफाइंड होता है, इसलिए स्मॉल रेंज ऑफ सिग्नल के लिए डिफाइंड होता है। बट z प्लेन इज डिफाइंड फॉर इंटायर z प्लेन में, कहीं पे भी वो डिफाइन हो सकता है। तो हमने देखा ये जैसे 2 टू द पावर n un है, यहाँ पे ROC था mod z ग्रेटर देन 2 और 1/2 टू द पावर n un के लिए ROC था mod z ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ पे इसकी, क्योंकि ये यूनिटी सर्कल को कवर करेगा, इसलिए इसका DTFT भी निकल सकता है और z तो निकलेगा ही निकलेगा, बट यहाँ पे इसका सिर्फ z ट्रांसफॉर्म ही निकल सकता है। सो 2 पावर n un एक ऐसा सिग्नल था जिसकी आप DTFT नहीं निकाल पा रहे थे, तो आपने z निकाल लिया विद सम ROC। समझ आया? यस सर। तो ये रिजल्ट याद रखना, दैट a power n un लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज a power n un लाप्लास z ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय z upon z minus a, and its ROC is given by mod z greater than mod a. सेकंड न्यूमेरिकल करो, गिव यू स्टैंडर्ड सिग्नल x of n is equal to, ये भी हमने लिया था CTFT में, माइनस a power n u of minus n minus 1. Determine this z transform. Determine the z transform of अच्छा, इसमें ये नोट करके लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो। If ROC in z transform covers mod z equal to 1 circle or unity circle, then its DTFT will also exist, will also converge. ये क्लियर आपको? सिमिलरली आप याद करो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ROC कवर्स दी j ओमेगा x, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। हाँ सर, एक डाउट था। बोलिए। सर जैसे कि आपने बोला कि अगर अगर कवर कर रहा है तो वो उसका DTFT भी डिफाइंड होगा। बिल्कुल सर, तो कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है ना कि मतलब कितना पार्ट कवर करना चाहिए? मतलब नहीं, कि पार्ट नहीं, यहाँ तो पूरा z ग्रेटर देन तो पूरा ही कवर होगा ना। अगर मैं ये करूँ सर, जैसे कि 0 से लेके 1 तक अगर आए तब तो पॉसिबल है ना सर? RZ हमारा दे रखा था, z अपॉन में z माइनस 1/2 था। हाँ, अगर मैं पोल को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए z माइनस 2 अपॉन में z माइनस 1/2, या z बताओ क्या माइनस है xz, बताओ क्या है, फिर से बताओ। xz मैं बोल दे रहा हूँ कि एक सेकेंड, z माइनस 3/2, z माइनस 3/2, हाँ, अपॉन में z माइनस 1/2, ठीक है। इसका मैं बोल रहा हूँ। इसके ROC क्या बता रहे हो? हाँ। xz हमेशा ROC के साथ डिफाइन होता है ना। ROC क्या है बताओ?
सर मीन्स अगर इसका यूनिटी सर्कल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद से ये पोल और ये देखो यूनिटी सर्कल तो आपको ड्रॉ करना है, जैसे हम इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते थे ना, ये तो यूनिटी सर्कल हो ही गया। यस सर। ठीक है, अब इसके आप पोल जीरो भी बना दो, जीरो डिफाइन नहीं कर, जीरो तो आप बस बना दो 3/2 पे कहीं पे बनेगा, जीरो में नहीं बना रहा हूँ, ये रिलेवेंट है ना, हमें पोल से मतलब है। पोल डिफाइन करता है बिकॉज पोल पे आप एग्जिस्ट नहीं करता ना ये, तो पोल कहाँ पे आपका हाफ, z इक्वल टू हाफ पे, यहाँ पे कहीं पोल है। ओके सर। पोल इज इनसाइड द यूनिटी सर्कल, राइट, पोल इज इनसाइड द यूनिटी सर्कल। अगर आप बोलोगे इट्स आरओसी इज मॉड z लेस देन हाफ, ठीक है, तो आरओसी क्या हुआ? अगर आप बोलोगे आरओसी इज मॉड z ग्रेटर देन हाफ, तो वो कहाँ होगा? मैं कलर से डिफाइन कर रहा हूँ, देखो सर तो इसके जीरोस को मतलब सेंटर नहीं माना जाता है? जीरोस को नहीं, ओनली पोल्स। जीरोस में दिक्कत नहीं है, कन्वर्जिंग नेचर पोल बताता है, बिकॉज एट पोल xz विल बी इनफाइनाइट। सो इफ x of z is equal to, let's say in the numerator function upon z minus a, z minus b, so obviously at z, a and b its z transform will tend toward infinity, right? जीरोस पे मतलब नहीं। ओके सर। ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर पोल एट पोल। अगर मैं बोलूं यहाँ पे z इक्वल टू a पे क्या होगा, आप बोलोगे a पे आप xz विल बी इनफाइनाइट, नॉट कन्वर्जिंग। एट z इक्वल टू b क्या होगा, xz विल बी इनफाइनाइट। तो पोल का सिग्निफिकेंस क्या था? ROC शुड नॉट कंटेन एनी पोल। अगर ROC आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पोल हो ही नहीं सकता, बिकॉज पोल पे कभी भी कोई ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। पोल पे करेगा क्या? देखो पोल, अगर आप ए को पोल कह रहे हो तो पोल पे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये मैंने दो कंडीशन बताया। अगर आरओसी आपका मॉड z लेस देन हाफ है, तो वो सॉरी वो पर्पल कलर से मैंने आइडेंटिफाई किया है, आप देखो ये वाला होगा, और मॉड z ग्रेटर देन हाफ का मतलब क्या होगा? ये वाला। इसको केस 2 बोल लो, इसको केस 1 बोल लो। तो बताओ, अगर मॉड z लेस देन हाफ होगा, देन इट्स DTFT विल एग्जिस्ट और नॉट? एग्जिस्ट। इट विल नॉट एग्जिस्ट। मॉड z लेस देन हाफ का मतलब होगा यूनिटी सर्कल कवर नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? मॉड z ग्रेटर देन हाफ का मतलब होगा यूनिटी सर्कल अब उस रेंज में आ रहा है। सर कुछ यूनिटी पार्ट सर्कल तो कर रहा है। देखो ये यूनिटी सर्कल है, मॉड z इक्वल टू 1, ये हाफ है, मॉड z इक्वल टू हाफ। मॉड z लेस देन हाफ मींस ऑल द रीजन इनसाइड द हाफ सर्कल, 1/2 रेडियस सर्कल। Am I clear or not? Yes, sir. यस सर। दोबारा देखो, if ROC in Z transform covers the Z equal to 1 circle, then its DTFT will also exist, otherwise it will not exist. समझ में आया? अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, मैं थोड़ा सा लाप्लास भी ला रहा हूँ बीच में ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में if ROC is such that sigma is greater than -2, तो सिग्मा ग्रेटर देन -2 का मतलब होता था ये पूरा, सर इट विल एग्जिस्ट इसमें। then its Fourier will exist, then Fourier transform will exist. समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं बोलूं ROC is sigma lesser than -2, नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। यूनिट ये जियोमेगा एक्सिस पे ही अगर होगा, जियोमेगा एक्सिस पे ही पूरे ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, राइट? अगर जियोमेगा एक्सिस ROC इंक्लूड नहीं कर रहा, इसका मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका नहीं निकल सकता। इस एक्सिस पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ही नहीं, कन्वर्जिंग नेचर है ही नहीं फूरियर का, लाप्लास का। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, मैं sir. स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ ROC इंक्लूड्स द जियोमेगा एक्सिस, then its continuous time Fourier transform will exist, whereas in Z transform, if ROC includes the unity circle, ROC अगर unity circle को cover कर रहा है, then definitely its DTFT will exist. ठीक है? अगर कभी क्वेश्चन आए कि बताओ इसके लिए लाप्लास निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपको क्या करना है? इसके लिए फूरियर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपको क्या करना है? उसका लाप्लास निकाल लेना है। उसका लाप्लास निकाल के ROC चेक कर लो। अगर ROC में कवर कर रहा है आपका इमेजिनरी एक्सेस, तो आप कहोगे उसका फूरियर भी निकल सकता है।
ठीक है, तो प्लीज नोट दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एज वेल एज Z ट्रांसफॉर्म, Laplace transform is applicable for only continuous time signal and Z transform is applicable only for discrete time signals. They are valid for broader range of signals for which Fourier transform are not existing in nature. चलो इसको आप पढ़ लेना दोबारा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करके दिखाओ। सर एक्सेल माइनस जेड अपॉन जेड माइनस ए। सर Z by Z minus A आ रहा है। Z by Z minus A आ रहा है। ओके, सर Z by माइनस जेड अपॉन जेड सर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए इंटू जेड माइनस से आ रहा है। नहीं, Z अपॉन Z माइनस A आएगा। चलो करके देख लेते हैं जल्दी से। XZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन क्या था, ये माइनस को तो बाहर ही रख देते हैं और ये हो जाएगा n वेरीज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 z टू द पावर माइनस n। ये हमारा xn हो गया, xn z टू द पावर माइनस n। ठीक लिखा है मैंने। अच्छा, u ऑफ माइनस n माइनस 1 का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। वेरी नाइस। तो ये लिमिट आपका माइनस इन्फिनिटी टू, तो n को यहाँ पे कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा a टू द पावर n, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, z टू द पावर माइनस n। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग माइनस है समेशन के लिमिट में, तो लेट्स एक और वेरिएबल ले आते हैं n इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू m, है ना। और ये सब करके देखोगे तो आप देखोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट a टू द पावर माइनस n z टू द पावर n। ये सही लिखा मैंने, देखो। यस सर। n को कोई वेरिएबल मान लो, माइनस n को कोई वेरिएबल मान लो m, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जस्ट मैं देखो रुकेगा। ओके, चलो इसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ये ठीक लिखा है मैंने? यस सर। यस। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a इनवर्स ऑफ z टू द पावर ऑफ n। यहाँ पे बेटर होगा जब आप लेट्स से इसको एक्सपेंड कर दो, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा a इनवर्स z प्लस a इनवर्स z होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे आप a इनवर्स z को कॉमन ले लो, इजी रहेगा।
अगर a इनवर्स z को कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस a इनवर्स z प्लस a इनवर्स z का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट. Now this is equal to minus of a inverse z. माइनस को बाहर ही रखा था. तो ये जो ये देख रहे हैं हम लोग, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना. We have this is a inverse z to the power 0, that is a upon 1 minus r, that is 1 upon 1 minus r. यही होगा ना. इसको आपने लिखा माइनस ऑफ a inverse z अपॉन, यहाँ पे भी इनवर्स z कॉमन ले लेते हैं. आप अपने हिसाब से कर लो, सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है. तो ये 1 Z अपॉन upon 1 Z माइनस क्या है? माइनस 1 हो गया, कैंसिल हो गया. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स, दैट इज z अपॉन z माइनस a. देखो ये आ रहा है, यस सेम आएगा. पिछले वाले का जो था ना वही रिजल्ट आएगा, z अपॉन z माइनस a. अब आरओसी जरा डिस्कस करते हैं. आरओसी क्या होगा? आरओसी क्या होगा? आरओसी देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको कि xz जो है वो कन्वर्ज होना चाहिए, है ना. xz जब तक कन्वर्ज होगा तब तक आपका z ट्रांसफॉर्म डिफाइंड है. यहाँ पे देखो ये क्लियर है कि ये टर्म जो आपका है ना समेशन, इसका मॉड ये जब तक लेस देन 1 है ना, मॉड ऑफ a इनवर्स z लेस देन 1, देन ओनली z ट्रांसफॉर्म. सर मॉड z लेस देन ही हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे आरओसी के लिए डेफिनेशन से चेक करोगे और आप बोलोगे मॉड ऑफ a इनवर्स z, ये मॉड अगर लेस देन 1 है देन ओनली x ऑफ z विल कन्वर्ज. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड z लेस देन लेस देन मॉड ऑफ a. ठीक है. तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आपका सिग्नल है a टू द पावर n un, इसका z ट्रांसफॉर्म भी होता है z अपॉन z माइनस a, और माइनस a पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 है, इसका भी z ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज z अपॉन z माइनस a, एंड इट्स ROC इज mod z greater than mod a, and its ROC is mod z less than mod a. सब ROC पे डिपेंड करता है. ये आपको दो रिजल्ट्स याद रखने हैं. these are two basic signals. इसके भी आप एक लेट्स से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स से x of n is equal to 7 into 1/3 to the power n un minus 6 into 1/2 to the power n un. Determine z transform and also comment on its ROC. What will be z transform? If you know the result, directly we can determine, right? So we can say that xz will be 7 into z minus z upon z minus 1/3 minus 6 into z minus z आप upon सॉल्व z minus मैं 1/3. एक मिनट में आया, एक मिनट. हाँ, yes, इस z transform will be, बताइए what is the result? 7 into z upon z minus 1/3 right
minus 6 into z upon z minus 1 by 2. Simple. And ROC talking 1 by about 2 the से बड़ा ROC will be mod z greater than greater 1 than by mod 3. 1. Obviously, it will be intersection of mod z greater than 1 by 2. Common area देखेंगे. So यहाँ पे it will be mod z Greater greater than 1 than by 2. 1 by 2. ठीक है. Now my question is, can you determine DTFT of this or not? Yes, If sir. DT, Yes, sir. simple. If it includes the unity circle, its DTFT is also applicable. ठीक है? इसके Yes, DTFT भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं. ओके. एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधा प्रॉपर्टीज में जाके खत्म करते हैं. ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बुक दे रखा है मैंने, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं. Practice with the numericals of Z transform. Let's say x of n is equal to a to the power of mod of n. Given that a is greater than 0, determine the Z transform. Determine the Z transform of this segment. सर 2z upon z minus a. आशीष तेरी वजह से गए हैं. मैंने क्या किया भाई? आशीष भाई क्या वापस ला भाई. बदतमीज अरे है भाई तू भी. यार मुझे तो लगा है दुबई की टीपी देख के भाग गए. भाई ये दुबे भाई डीपी में मेरे को डडवाल जैसा लगता है. दुबई ये तू ही तो है ना डीपी में. हाँ भाई मैं ही हूँ, बहुत पुरानी है. भाई ऐसे पैर पे पैर मत रख भाई, टूट जाएगा. अभी अभी तो जुड़ा है. भाई देख ऐसी बातों से सर भाग जाते हैं तेरी. नहीं भाई, ऐसे प्रिकॉशन रखा कर भाई, फिर पैर टूट जाएगा. लीफ पे बैठ के पढ़ के टॉप मारेगा. सही बंदों के संग जाया कर भाई बैडमिंटन को. सही में भाई. अब अबे वो तो गया भी लोग क्रिकेट खेलने गया था. भाई बुरी नजर तो सिला है भाई. भाई हर्षित का कोडिया भाई, क्या भाई डेडिकेशन देखो भाई. और ककोड़िया भाई. हेलो भाई, कितना पड़ेगा भाई? सब छोड़ के जा रहे हैं भाई देख. भाई लीव कर दी भाई. आशीष तो चुप हो Joining in गया. 2 minutes. भाई ऐसे नहीं होता भाई, सैम्पलिंग बट ज्वाइनिंग इन 2 मिनट्स. ओके सर, थैंक यू. और भाई इम्पोस्टर वो तो मैं था ना भाई. तो सर बीच बीच में चले कौन से? भाई. भाई अंकुर भाई उन्हें आगे बढ़ने दे भाई. मैं रोक के थोड़ी रहा हूँ, तो घर पे हूँ अपने. भाई रोक ही रखा है भाई तूने. भाई सैम्पलिंग हो जाता भाई. तूने 2 डाउट पूछे ना, उसकी वजह से रह गया बस.
Okay, am I audible? सर बैटरी Yes, कम sir. है सर, आईपैड की चार्जिंग पे लगा लो, डेड हो जाएगा। एक्चुअली पावर कट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वही अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, a to the power mod n, इसके लिए मुझे निकालना है ना? So can we write x of n is equal to, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, a पावर mod n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? So a sigma पावर n of un, हाँ प्लस, नहीं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पहले भी देखा हुआ, a पावर माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1। yes, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? yes, sir. u ऑफ माइनस n माइनस 1 मीन्स, सर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। very nice, minus infinity to minus 1, right? And u power n means including n equal to 0 to Infinity. infinite, ठीक है? So this a power mod n in discrete time can be represented like this. Now question is very easy. What is the z transform of this given signal? This is सर 2z अपॉन z माइनस से। ये सर दोनों सेम ही है, 2 हो जाएगा। आरओसी नहीं, बस नहीं, चेंज नहीं। होगा सर क्योंकि 2z अपॉन z माइनस से हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखो कुछ यहाँ सर पे a दूसरे power, में 1/a आ रहा है। हाँ सर दूसरी वाली टर्म में z/z माइनस 1/a आ रहा है। z अपॉन z माइनस 1 बाई आ रहा है। ओके, सर दूसरी, हाँ, az upon az minus 1. देखो यहाँ पे हो जाएगा z अपॉन z माइनस, ये तो आपको पता ही है। इस वाले में देखो इसका क्या निकलेगा, या मैं इसको z इनवर्स के टर्म में लिखूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको ये भी रिजल्ट याद रखना चाहिए, 1/1 माइनस a z इनवर्स, इस वाले का, ठीक है। इसका क्या आएगा देखो, अभी तक हमने क्या किया था, माइनस a टू द पावर ये प्लस a टू पावर n था, है ना। यहाँ पे क्या है, माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स टू द पावर n, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब सही है, Yes, sir. इसको कैसे लिखोगे, एक माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज यह माइनस होता है, तो माइनस ऑफ 1/1 माइनस a इनवर्स z इनवर्स। Z अब ठीक है inverse. मेरे ख्याल से, Yes, sir. ठीक है। आरओसी चेक कर सकते हैं, आरओसी हो जाएगा मॉड z ग्रेटर देन a, इसकी वजह से, एंड इसकी वजह से मॉड z लेस देन a इनवर्स, दैट इज 1/a। So ROC will be mod z between a to 1/a। सही लिखा है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इसमें आ जरा इनवर्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म, या बाद में कर लेना इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। ये भी हमने लाप्लास में बहुत देखा हुआ डिटेल में, ये बहुत इजीली आप कर लोगे। इनवर्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म, you can apply the partial fraction method, right? And based upon the given ROC, you can comment on inverse z. Inverse z का मतलब क्या हुआ? From the given x of z, you need to determine x of n. Definition wise, if you want to note down the definition, it is given by 1/2 pi j contour integral of xz z to the power n minus 1. Please mute yourself. Mute करिए. Okay. Or simply, if x of z is given in terms of rational fraction, अगर rational fraction दिया हुआ है, तो simply what you can do, you can apply the partial fraction expansion. Apply the partial fraction expansion, PFE. For example, let's say x of z is given like this. X of z is equal to 3 minus 5/6 z inverse upon 1 minus 1/4 z inverse, 1 minus 1/3 z inverse, and ROC is given mod z greater than 1/3. Now comment on x of n. Determine inverse z transform. कैसे करना है बताइए?
Am I audible? Yes, sir. Okay. कैसे का सॉल्व करते हैं बताइए? सिंपली x ऑफ z आपका दिया हुआ है रैशनल फ्रैक्शन में, तो आप क्या लिखोगे? x ऑफ z इज इक्वल टू, देयर आर सेपरेट सिंपल एंड डिस्टिंक्ट पोल्स. लाप्लास में भी हमने किया हुआ है. द पोल्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a अपॉन 1 माइनस 1/4 z इनवर्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 1/3 z इनवर्स, है ना? यस सर. अब a भी निकालना आपको आता है. a क्या हो जाएगा? a निकाल के बताइए. a कैसे निकालोगे? a इज इक्वल टू 3 माइनस 5/6 z इनवर्स ओवर 1 माइनस 1/3 z इनवर्स. कैंसिल कर दिया डिनोमिनेटर से, और वेयर z इनवर्स इज इक्वल टू, बताओ. 4 1/4 4 z इनवर्स इज इक्वल टू 0 इक्वेट करना है ना पूरा. तो इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4. ठीक है? z इनवर्स इक्वल टू 4. इसको या तो z के टर्म्स में इनिशियली लिख लो, है ना, बट आप z इनवर्स के टर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 4. z इनवर्स को 4 पुट कर दो, सॉल्व कर दो. मेरे ख्याल से a जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, और b जो आ रहा है वो 2 आ रहा है. आप सॉल्व करके देख लेना. तो सिंपली x z को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 z इनवर्स, है ना, और b को आपने लिख दिया 2 अपॉन 1 माइनस 1/3 z इनवर्स. अच्छा, आरओसी क्या गिवन है? देखो आरओसी क्या गिवन है. आरओसी है मॉड z ग्रेटर देन 1/3. अब आरओसी देखते हुए आपको इसका इनवर्स निकालना है. ठीक है, बताइए क्या लिखोगे? आपको पता है 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? इफ आरओसी इज मॉड z ग्रेटर देन a, देन इट शुड बी. अच्छा, एक और चीज, एक और बात बता दूं मैं आपको. इसको हम लोग ना ये भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट साइड सीक्वेंस. ए फॉर एन गिवन कैसा सीक्वेंस है? जो राइट साइड जा रहा हो, राइट? ये राइट साइड का सीक्वेंस है. एंड u ऑफ माइनस n माइनस 1 कुछ ऐसा, ये लेफ्ट साइड सीक्वेंस है. तो लेफ्ट साइड सीक्वेंस के लिए आरओसी क्या आता है? मॉड z लेस देन a. एंड राइट साइड सीक्वेंस के लिए मॉड z ग्रेटर देन a, है ना? तो आप, मैं सिंपली ये पूछ सकता हूँ, सिंस मॉड z इज ग्रेटर देन 1/3, so you'll get right side sequence, that is 1 to the power 4 a to the power n un. सही लिखा मैंने? देखो. यस सर. प्लस अगेन मॉड z इज ग्रेटर देन 1/3, है ना? तो ये आप क्या लिखोगे? तो दिस विल बी 2 into 1/3 2 into 1/3 to the power n un. This will be your z x of n. पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करके आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं इनवर्स z ट्रांसफॉर्म. अब z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, जल्दी से 5 मिनट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ z ट्रांसफॉर्म, दे आर सिमिलर टू DTFT. प्रॉपर्टीज ऑफ z ट्रांसफॉर्म, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी, इफ x of n Laplace z transform is x of z, and given that ROC is R, right, then it's z transform of x of n. इसको हम लोग पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. सॉरी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये मेंशन करना भूल गया मैं. इफ x of n Laplace transform is x of z, let's say ROC is R1 and x2n its z transform is let's say x2z and ROC is R2, then we know that for a times x1n plus b times x2n, its z transform will be given by ax1z plus bx2z. This is called linearity property. And ROC will be, बताइए, R1 intersection of R2. This is called linearity property. Similarly, time shifting properties भी पता होनी चाहिए. Time shifting क्या है? Again, if x of n z transform is x of z,
and let's say ROC is given as some R, then x of n minus n naught. Its Z transform is given by Z to the power minus n naught, x of Z. And ROC is same, remain as it is. Right? If it is plus here, then here you should also write plus. So minus plus, here it will be Z to the power minus or plus n naught. This is called time shifting property. Third is scaling in Z domain. Scaling in Z domain. आज आप DTFT अच्छे से कर लेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया प्रॉपर्टी नहीं है. It is similar to again if x of n Z transform is x of Z, then its Z transform of let me write like this. For x of let's say an, its Z transform is given by x of Z by a. Fourth is time reversal. If x of n gives x of Z, then x of minus n gives x of Z inverse. सर ऊपर वाले का ROC. Yes, sir. Acha, sorry. ROC is if it is R, then here ROC will be mod of A into R. ये लाप्लास में भी कराया है इसके जैसा, आप देखना लाप्लास में प्रूफ भी कराया था. ठीक है सर ऊपर वाले में an बाहर नहीं होता xn से, एन बाहर नहीं होता मीन्स मतलब a to the power n xn नहीं होता. भाई वो ओमेगा वाली थी. A to the power n xn ऐसे कह रहे हो आप? यस सर. वो तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगी शायद. ये इसमें शिफ्टिंग पढ़ेंगे हम लोग, वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक है, a पावर n xn वाला अलग प्रॉपर्टी है. ठीक है, आते हैं उसमें भी बात करते हैं, a पावर n पे भी बात करते हैं. ठीक है, आप देखो टाइम एक्सपेंशन. सर ऊपर वाले का ROC. ROC इसके लिए भी नहीं बताया मैंने. अच्छा इसका लिख लो. ROC तो सेम इनवर्स हो जाता है. ROC अगर इसका R है तो इसका ROC 1/R हो जाता है. अच्छा पहले एक इजी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी. आप लोग ये बुक में सारा पढ़ लेना, बुक में गिवन है, आप सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल. कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी इज x ऑफ n, अगर अगेन x ऑफ z है, ROC इसकी R है, तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी है, x conjugate of n, its z transform will be x conjugate of z conjugate, and ROC will remain as it is. Then convolution property. Convolution property says that if x1 of n, इसकी अगर x1 of z है और ROC अगर आपकी मान लेते हैं R1 है, और x2 of n कि अगर x2z है and ROC is R2 है, then we know that if x1 of n convolution with x2n, अगर आप इन दोनों को convolute करा रहे हैं, then it is, ये हमने पढ़ा हुआ है लाप्लास में भी, convolution in n domain is multiplication in z domain. तो convolution discrete time convolution easy हो जाता है z domain में, simply आपको multiply करना होता है. तो with ROC क्या हो जाएगा, intersection of R1 and R2. These are some similar properties जो आप लाप्लास और उसमें पढ़ेंगे, वो आप देखना एक जैसी प्रॉपर्टी है, आप
जब जिसके DTFT और लाप्लास पढ़ चुके होंगे तो आपको प्रॉपर्टी एक जैसी लगेगी। डिफरेंशिएशन इन Z डोमेन, अगर मैं Z डोमेन में डिफरेंशिएशन करना है हमें, then again if x of n does transform is x of z, ROC is given by R, then nxn, agar if you multiply it with n, then it will be z times minus z times d by z dz of x of z. ROC again will remain as it is. This is called differentiation property or differentiation in z domain. In this is similar to which we have done in Laplace transform. xt का अगर x of s है तो txt का d by dt of x of s होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर if n is multiplied by x of n, it is minus z d by dz of x of z. ठीक है, then initial value theorem, we have understand initial value theorem in Laplace domain also. So initial value theorem is that is x of 0 can be determined if you have x of z, and this is limit z tend to infinite x of z. This is called initial value theorem. अगर x of 0 निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, z को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। तो लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनाइट x of z gives x at 0. This is called, फिर एक बार प्लीज ऊपर वाला दिखा दो दोबारा। डन सर। इसमें भी कंडीशन मैंने आपको लाप्लास में भी लिखाया था। कंडीशन ये याद रखना है, इफ x of n इज कॉजल, x of n कॉजल होना चाहिए तभी ये वैलिड है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। जस्ट लाइक व्हेन वी डिस्कस लाप्लास, xt शुड बी कॉजल। कॉजल मींस x of n शुड बी इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। ऐसा होगा तभी x of 0 निकाल पाएंगे, तभी इनिशियल वैल्यू निकलेगा। अगर ये x of n 0 लेस देन से भी इधर वैलिड है, then initial value theorem is not valid. Initial value theorem is not applicable. So initial value theorem is applicable only for those signals which are causal, that is which are defined only for n equal to 0 and onwards. ये condition आपको याद रखना है, then only initial value theorem is applicable. This we have also discussed in Laplace with the same conditions, right? Any doubt? सर उसमें तो एक दो कंडीशन और थे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक ही कंडीशन है, कॉजल होना चाहिए। अगर आपका कॉजल है तो आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके सर। प्रूफ में स्किप कर रहा हूँ, आप प्लीज बुक से पढ़ लेना बिकॉज नहीं तो लेंदी हो जाएगा। सर प्रूफ आ सकते हैं? नहीं, प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अच्छा, अगर आप मैंने आपको LTI सिस्टम भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी देखो, मैं 2 मिनट और लूंगा, आपका ट्रांसफॉर्म खत्म कंप्लीट हो गया। LTI सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल। सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम, अगेन Z ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल। So Z transform is useful. Z transform is useful in analyzing discrete time LTI system. What do you mean by discrete time LTI system? Means those LTI system for which input is, let's say, sequence of x of n and output is sequence yn, and let's say its impulse response is h of n. Then we know in LTI system क्या होता है relation? In LTI system we know that output is convolution of, ये पढ़ा है आपने? यस सर। Yes, sir. So when you apply Z transform, so solving the convolution is little difficult task. So we can apply the Z transform operation, and we can say that YZ is equal to XZ multiplied by HZ, right? And where HZ is known as, what is HZ?
it is the Z transform of impulse response of the system. We can also say that Hz is equal to Yz over Xz, and this is called transfer function of the system. Transfer function or system function. So what do you mean by transfer function? It is nothing but Z transform of impulse response of the system. Similar to what we have studied in Laplace transform. Right? In Laplace transform, we have studied that H of S was equal to Y of S over X of S. This is the transfer function for continuous time LTI system. Transfer function of CT LTI system. But when we discuss discrete time LTI system, their input and output are discrete in nature. We have to define transfer function in terms of Z. Right? And once you have YZ of the system, then you can apply the inverse transform and you can determine the YN. ये हमने प्रॉब्लम देख रखा है, राइट? लेट्स से एक क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं. लेट्स से यू हैव वन LTI सिस्टम and input to the system is, let's say, X of n, and this is H of n. Let's say H of n is equal to 1 upon 1 minus 1 by 3 Z inverse. Sorry, not Z inverse. Let's say this is 1 by 3 to the power n un, and input is, let's say, 1 by 4 to the power n un. Question is determine the output of the system. What will be your approach? For the given LTI system, input and impulse response is given to you. You need to find out response of the system, YN of the system. क्या करेंगे आप यहाँ पे? सब पहले YZ निकालेंगे फिर इन्वर्स कर देंगे. यहाँ पे सिंपल YZ निकाल दो. आप बोलोगे YZ is equal to HZ multiplied by X of Z. So this will be 1 upon 1 minus 1 by 3 Z inverse multiplied by 1 upon 1 minus 1 by 4 Z inverse. ROC आराम से आप निकाल सकते हैं. तो ये ROC निकाल देना जो आएगा. And then you can determine Y of n. Looking at the ROC, Y of n can be determined. Taking the inverse of YZ. ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको करके सॉल्व करके इनवर्स ऑफ YZ निकाल लेंगे तो YN भी आ जाएगा. ठीक है? Is it clear? Now how to check given LTI system is causal or not? दो टॉपिक और डिस्कस करना है, causality and stability. Causality of LTI system. If you remember, the condition for any LTI system is causal. Any LTI discrete time LTI system is causal only when H of n is equal to 0 for n lesser than 0. This was the condition for LTI system. LTI system causal कब होता है? जब उसका impulse response 0 हो for n less than 0. It means that this is what type of signal? जब आपका impulse response 0 हो for n less than 0, it means impulse response should be causal or right side sequence. Can I say that? अगर impulse response is right sided sequence, then only LTI system is causal. So I can comment on, if you have its Z transform, then I can say that ROC should be right of the rightmost pole. ये पहले भी पढ़ा है, right of the rightmost pole. मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड सीक्वेंस के लिए अगर सिग्नल आपका राइट साइडेड है, देन आरओसी कहाँ होता है? राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल. ठीक है? आरओसी इज ऑलवेज राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, देन ओनली सिस्टम इज कॉजल. जैसे फॉर एग्जांपल आपने Z ट्रांसफॉर्म निकाला और इसके 3 पोल्स आए. एक आया 1/2, एक पोल आया आपका लेट्स से 1/4, 1/3, और एक पोल आपका आया, so sorry, let's say it is 2, और लेट्स से एक पोल आपका आ रहा है लेट्स से 3. 3 पोल आपके आ रहे हैं. and I am saying that system is causal. Then causal, अगर मैं कह रहा हूँ LTI ये सिस्टम causal है, then by default you can say that
its ROC should be right of the rightmost pole. ये हमने लाप्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको. If ROC is if x of n is a right-sided sequence, then उसका जब आप z ट्रांसफॉर्म करते हैं, then its ROC is always right of the rightmost pole. This is a property of ROC. Right? Similarly, if x of n is left-sided sequence, then ROC is left of the leftmost pole. So I can say that if you have hz, दोबारा देखो h of z अगर आपके पास है, what is hz? Transfer function of the system. If you have hz of the system, then you can comment on causality. How? If you look at the ROC of h of z, and if it is right of the rightmost pole of the z, जैसे आपके पास hz given है, h of z की आप पोल्स निकाल लो. लेट्स से ये कुछ इस तरीके का है. तो आपने बोला पोल्स कहाँ कहाँ है? पोल्स आपका A पे है और B पे है. And if ROC is right of the rightmost pole, then only आप directly बोल सकते हो system is causal. So if ROC is right of the right, please note down this condition. If ROC of h of z is such that it is right of the rightmost pole, then the system is causal. And for stability, स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है? कोई भी एंटी सिस्टम कॉजल कब होता है, स्टेबल कब होता है? इफ h of n is bounded, right? This is the condition for stability. hz अगर दिया तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? If you have its z transform, then how you will check the stability? We know that if it covers the unity circle, if ROC of, लिखिए जरा, if ROC of h of z covers the unity circle, what is significance of covering the unity circle? फोरियर नहीं हो सकता. उसकी फूरियर एग्जिस्ट होगी, है ना? फूरियर एग्जिस्ट होगी तो क्या होगा? ये सेटिस्फाई होगा, तभी तो उसका फूरियर एग्जिस्ट. बैटरी गई भाई. चल भाई दुबे सैम्पलिंग पढ़ा दे भाई, घर पे पढ़ रखा है ना तूने सब. उस सैम्पलिंग के बाद से कुछ नहीं बया ना हमारे पास. है भाई. सैम्पलिंग के बाद क्या है? सैम्पलिंग के बाद है डीसैम्पलिंग. फिर एंटी सैम्पलिंग. क्या क्या बोल रहे हो भाई कुरकुरे खा रहा है भाई. किसकी फाड़ रहा है? ASMR कर रहा है क्या?
खत्म हो गई क्या नीट? तो तुझे क्या लगा सर क्यों चले गए? पता नहीं, हॉबी होगी, आयुष ने भगा दिया होगा फिर से। आयुष दुबे। हाँ, मुझे तो गुप्ता लगा था भाई। गुप्ता पे मुझे तेरी मुझे भी बात गुप्ता ही लगा था। भाई गुप्ता ही लगता सबको पहले। है। गुप्ता भाई शक्ल से सस आदमी है भाई। भाई सर से बहुत। सस तो भाई अरुण की डीपी भी है 48 वाले की। VIM एम्पलीफायर के क्वेश्चन आएंगे क्या? प्रीवियस ईयर में दे रखा था वैसे। भाई चुप हो जा। अबे चूतिया बता ना, आता है तो। अबे तू चुप हो जा। भाई तूने उन क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखा था क्या लिखा था, कौन सी ब्रांच थी? हाँ कोड और सब कुछ अलग था, ये तो देखा था मैंने। तो बस फिर सिविल ब्रांच का है वो। 3D के बच्चे ना बोले तो अच्छा रहेगा। यार कोई सर के पास कॉल करके पता करो। डेडवार्क और करिए सर को। भाई सर का वो आया था, कह रहे हैं कि एक पावर कट हो गई है तो कल होगी क्लास, अब नहीं हो पाएगी। और कट हो गई है या फिर चार्ज खत्म हो गया? और जो भी है सर ने जो बोला है। तो अब कल क्लास होगी या फिर हाँ होगी ना सर।